Good afternoon, students. Today we are discussing about urgent plane or polar representation from the topic complex number. As in our coordinate system, there are two dimensions. This is x-axis and this is a y-axis. And if you want to plot any point, suppose A, that is a 2, 2, and B, that is a x0 and y1. This point is B, C, D. Same as complex number can also be pointed on this plane. Complex number, suppose 2 plus 4 iota, minus 2 plus 3 iota, 2 plus 2 iota, 0 plus 1 iota. अब इनके लिए ऑर्डर्ड पेयर क्या होगा? 2 plus 4 iota यानी 2 4, minus 2 plus 3 iota, that is minus 2 3, 2 plus 2 iota, that is 2 2, 0 plus 1 iota, 0 1. So these are also represented geometrically by the points C, D, A and B. So any plane having a complex number assigned to each of its point is called the complex plane और अर्जेंट प्लेन. जैसे हम जब जनरली नंबर यानी ऑर्डर्ड पेयर प्लॉट करते हैं तब हम उसे कहते हैं एक्स वाई प्लेन. तो जब हम उन्हीं पेयर्स को डिनोट करेंगे बट वो पेयर्स आपके पास कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में है जिसमें रियल नंबर आप एज अ एक्स एक्सिस प्लॉट होगा, इमेजनरी आयोटा की फॉर्म में यानी एज अ वाई एक्सिस रिप्रेजेंट होगा. दैट इज कॉल्ड complex plane or urgent plane. Suppose there is any point P and this is xy, x from yani this length and y is this length. So this point is xy and its distance from the origin OP, this is equals to square root of x minus 0 का whole square plus y minus 0 का whole square because this is origin, that is 0 0, and after that it's a square root. So we are well known about the modulus, and modulus is if z equals to x plus iota y, then modulus of z this is equals to root of x square plus y square. So you can say that कि OP is a modulus of the complex number. And if z equals to x plus iota y and its conjugate क्या होगा कि हमने इमेजनरी नंबर की जो भी उसके आगे सिंबल होगा पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर देना है, जो नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव कर देना है. पोज हियर p ऑफ एक्स वाई, दिस पॉइंट यानी x प्लस आयोटा वाई, तो इसी की ही मिरर इमेज ऑन रियल एक्सिस यानी इस रियल एक्सिस को एज अ मिरर लेके इसकी जब हम इमेज लेंगे तो वो डेफिनेटली इस साइड बनेगी. तो दैट पॉइंट यानी x माइनस वाई, दैट इज कॉल्ड इट्स कंजुगेट. नाउ पोलर रिप्रेजेंटेशन. अब p रिप्रेजेंट एज अ कम्प्लेक्स नंबर z इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y एंड OP रिप्रेजेंट लेंथ विच इज डिनोटेड एज r यानी मोडलस, that is r equals to root of x square plus y square, and theta is the angle which makes with the positive direction. अगर इस डायरेक्शन में हम मूव करेंगे that is the positive direction of x axis, this is known as a theta. So p as ordered pair r theta is called its polar coordinate, where अब z हमने x plus iota y लिया था तो हमने कहा कि x इक्वल्स टू आर कॉस थीटा, मीन्स टू से देखो ये पॉइंट हमारे पास x है, ठीक है, ये आपके पास r है, तो x अपॉन r, x यानी अब थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर, दिस इज बेस, सो बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस दिस इज इक्वल्स टू कॉस थीटा. सो x इक्वल्स टू r cos theta.
perpendicular upon hypotenuse, that is y upon r, this is equals to sin theta. That's why we put y equals to r sin theta. Theta is called its argument of z also. Argument of z also, and its principal argument that lies between minus pi to pi. A minus pi means to say in negative direction of x axis. अब suppose you have given x positive, y positive. That means your point must be in first quadrant. First quadrant, then your argument will be in the positive direction of x axis in first quadrant only. So जो भी हमारे पास थीटा आएगा वो हमने लिख देना है. एंड सपोज अगर आपका कोई पॉइंट P सेकेंड क्वाड्रेंट में है, अब सेकेंड क्वाड्रेंट में है दैट मीन्स x नेगेटिव होगा, y पॉजिटिव होगा, तब ये लाइन हमारे पास पाई तक शो करती है. तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस दैट इज़ पाई माइनस थीटा, ये एंगल बनेगा. तो इतना एंगल हमारे पास इस पूरे पाई में से हमने वो माइनस कर देना है, दैट इज़ पाई माइनस थीटा. नेक्स्ट अगर आपका वो P पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में आता है, यानी x भी नेगेटिव दिया हुआ है हमें और y भी नेगेटिव दिया हुआ है, तब हमने इसकी ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस ना लेके हमने ये इस साइड से लेना है, इस साइड से लेना है यानी माइनस पाई से. तो माइनस पाई प्लस थीटा ले लेना है हमने. नेक्स्ट फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर आपके पास पॉइंट है यानी x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है, देन आर्ग्यूमेंट ऑफ z दिस इज इक्वल्स टू माइनस थीटा. Now solve a question. Represent the complex number z equals to 1 plus iota root 3 in the polar form. अब z equals to 1 plus iota root 3 है. अब put x equals to, यानी x यहाँ पे हमारे पास है 1, this is equals to r cos theta, and y हमारे पास है root 3, this is equals to r sin theta. Now squaring both sides. 1 का स्क्वायर 1, दिस इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा. रूट 3 का स्क्वायर 3, दिस इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा. नाउ एडिंग 1 प्लस 3 4, दिस इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा. आर स्क्वायर यहाँ से कॉमन लोगे, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा. दिस इज़ 1 यानी आर स्क्वायर इक्वल्स टू 4. तो आर इक्वल्स टू हो गया आपके पास प्लस माइनस 2 आएगा, लेकिन मोडलेस है हमारे पास, वो नेगेटिव नहीं होगा. तो हमने आर क्या ले लेना है, पॉजिटिव 2. ठीक है. नेक्स्ट यू हैव टू फाइंड इट्स थीटा यानी आर्ग्यूमेंट. तो आर साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा. आर से डेफिनेटली आर कैंसिल हो गया, दिस इज इक्वल्स टू टेंजेंट थीटा. अब आर साइन थीटा क्या है, रूट 3 अपॉन आर कोस थीटा क्या था, दैट इज़ 1. अब रूट 3 अपॉन 1 यानी रूट 3. तो टेंजेंट थीटा की वैल्यू रूट 3 कब होती, दैट मीन्स थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 3. 60 पे ये वैल्यू हमारे पास रूट 3 होती है. अब हमने ये देखना है यहाँ पे दोनों के दोनों पॉजिटिव है, यानी x और y दोनों पॉजिटिव हैं, दैट मीन्स थीटा लाइज बिटवीन फर्स्ट क्वाड्रेंट. फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो जो हमारे पास आया थीटा हमने एज इट इज़ लिख देना है, यानी थीटा ही लिखना है. तो इसकी पोलर फॉर्म दिस इज इक्वल्स टू आर कोस थीटा प्लस आर साइन थीटा. क्योंकि देखो x को हमने r कोस थीटा लिखा था, y को हमने r साइन थीटा लिखना है, इनटू आयोटा हो गया. अब r है आपके पास 2, यू कैन टेक इट कॉमन. कोस थीटा है आपके पास पाई बाय 3 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 3. दिस इज इट्स पोलर रिप्रेजेंटेशन. नाउ वी सॉल्व अनदर एग्जाम्पल. कन्वर्ट द कम्प्लेक्स नंबर -16 अपॉन 1 प्लस आयोटा रूट 3 इंटू पोलर फॉर्म.
So let z equals to -16 अपॉन 1 प्लस आयोटा रूट 3. सबसे पहले हमने इसको रेशनलाइजिंग करना है क्योंकि हमने डिनोमिनेटर में कम्प्लेक्स नंबर नहीं रखना. सो 1 माइनस आयोटा रूट 3 अपॉन 1 माइनस आयोटा रूट 3. अब -16 इंटू 1 माइनस आयोटा रूट 3 अपॉन a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट इज़ 1 स्क्वेयर माइनस आयोटा रूट 3 का होल स्क्वेयर. अब माइनस के 16 इंटू 1 माइनस रूट 3 आयोटा अपॉन 1 रूट 3 का स्क्वेयर 3, आयोटा स्क्वेयर इज़ -1, दैट मीन्स -3 हो गया. यहाँ से माइनस माइनस प्लस के 3 हो गया. 1 प्लस 3 4, तो माइनस के 4 इंटू 1 माइनस रूट 3 आयोटा. So you can write it as -4 plus root 3 iota. So let r cos theta, this is -4, and r sin theta, this is root 3. Now squaring and adding. अब r square cos square theta plus r square sin square theta. दिस इज़ आर स्क्वेयर क्योंकि cos स्क्वेयर प्लस साइन स्क्वेयर थीटा, दिस इज़ 1. दिस इज इक्वल्स टू 16 प्लस रूट 3 का स्क्वेयर 3. वन मिस्टेक इज़ देयर, दैट इज़ 4 रूट 3. सो 4 रूट 3 का स्क्वेयर 4 4 द 16, 16 इंटू 3, दैट इज़ 48. And 16 plus 48, this is 64. So r equals to 8. Now r sin theta upon r cos theta, this is equals to 4 root 3 upon -4. 4 से 4 cancel, that means minus के root 3. अब tangent theta equals to minus root 3. ठीक है, तो माइनस ऑफ टेंजेंट रूट 3 किस पर था, π/3 पे इसकी वैल्यू. ठीक है, नाउ सी व्हाट इज x एंड y. x नेगेटिव, y पॉजिटिव. अब x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, तो x नेगेटिव y पॉजिटिव, दैट मीन्स सेकेंड क्वाड्रेंट. सेकेंड क्वाड्रेंट में जब आपने एंगल लेना है, दैट इज π-θ. तो दिस इज इक्वल्स टू टेंजेंट ऑफ पाई माइनस, जो यहाँ पे थीटा हमने लिया था, π/3. अब पाई माइनस π/3 किसके इक्वल है, दैट इज़ 2π/3 की, यानी थीटा आपके पास कितना आ गया, 2π/3. नाउ राइट इट इन द पोलर फॉर्म. z इक्वल्स टू 8 इंटू कोस 2π/3 प्लस आयोटा साइन 2π/3. This is the answer. Now solve the questions from second exercise of complex number from your NCERT book. You can download book from NCERT app. Thank you and have a nice day.